हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टीचर वीरेंद्र आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोस को लाया है जिसकी हेल्प से आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट्स, you all know that we are already studying about Java programming languages, and right now unit number 3, that is fundamentals of Java programming, this is already running, and I have already provided some of the videos regarding this, and already I have taken some of the physical classes regarding the Java programming. So with the continuation of this, I am going to present one more video related to a most important topic, that is operators and its kind. In this video, we will have a detailed explanation about the operators with the help of some most important programs. Right, students? So, students, without wasting any of the time, let's move to our PowerPoint presentation to have a look about the details about the operators and its kinds. So, please come. Okay students, now we are going to start the video, that is Java operators and its kinds. Okay, यहाँ पर हम अपने इस जावा ऑपरेटर को समझने के लिए कई सारे प्रोग्राम बनाएंगे और बनाने के बाद एक एक प्रोग्राम को, एक एक लाइन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है वो क्या है। आपको ऑपरेटर की डेफिनेशन बता दूँ आपको। Operator is nothing but it's a one kind of special symbols which is used for the programming languages, and these programming languages are used for the specific operations, right? मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि आप यहाँ पर ऑपरेटर को स्पेशल सिंबल्स कह रहे हैं। इन्हीं स्पेशल सिंबल्स की हेल्प से आप कई तरह के स्पेसिफिक ऑपरेशंस कर रहे हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कई तरह के ऑपरेशंस आप कर रहे हैं। Okay, so now we are going to have our 4 kinds of categories. Okay, first one is arithmetic operators, second one is relational operator, third one is assignment operator, and fourth one is logical operator. We'll try to understand each and everything, okay, in a detailed manner, right, about each and every kind of operator. Chalo, let's come to the next line. So now students, first is arithmetic operators. In this type of operator, there is various kinds of symbols are there. Likewise, addition, subtraction, multiplication, division, modulus, increment, and decrement. Right? So addition, subtraction, multiplication, division, and modulus. You are already aware about the same. Okay? Because you already know about some of the database languages like SQL. Okay, or maybe some other programming languages. Okay, so each and every kind of operator is used in different programming languages, right? But now we are focusing about only 4 kinds of symbols like division, modulus, increment, and decrement, right? So let's take some of the programs and then we'll try to understand. आपको पता ही होगा कि जब हम डिवीजन ऑपरेटर की हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो कोशेंट होगा वही आपका रिजल्ट आपको आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिमाइंडर की, तो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो भी आपका डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर बचता है वही आपका आंसर आएगा यहाँ पर। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि जैसे आपने कोई वैल्यूज़ आपने डिफाइन की और आपने उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपने यूज़ कर लिया। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर? इसका मतलब ये हुआ कि अब वो वैल्यू आपका एक से इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। तो एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि प्लस प्लस पहले यूज़ करने से क्या होगा, प्लस प्लस बाद में यूज़, यानी कि वेरिएबल के पहले और वेरिएबल के बाद में अगर आप इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, प्लस प्लस का या माइनस माइनस का, तो क्या होगा, इनका नाम क्या है, इनके बारे में जो भी डिटेल्स हैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सो आई होप बिल्कुल रेडी हैं आप इसको समझने के लिए। चलिए अब हम बनाएंगे एक प्रोग्राम। चलिए देखिए, ये आपका रहा फर्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पर आपको 3 वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं, इंट a = 100,
b इक्वल टू 50 और c, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैंने लिखा है c इक्वल टू a प्लस बी, c इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ पर मैंने क्या किया है, c को मैंने यहाँ पे एक तरह से प्रिंट एलन फंक्शन की वजह से डिस्प्ले करा लिया, इसके रिजल्ट को मैंने डिस्प्ले करा लिया है, ठीक है। चलिए देखिए मैंने क्या किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैंने वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए प्लस जो ऑपरेटर है इसका यूज किया, मैंने लिखा है प्लस सी लिखा है मैंने यहाँ पर, ये देखिए प्लस सी लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आपका रिजल्ट क्या है, यहाँ पर दोनों नंबर का एडिशन यहाँ क्या आ गया, 150 आ गया यहाँ पर। इसी के साथ सब्ट्रैक्शन के लिए सेम c इक्वल टू a माइनस बी है, फिर मैंने c को ही प्रिंट कराया है यहाँ पर। आपका देखिए 100 में से 50 जाएगा तो 50 ही बचेगा। फिर इसके बाद मैंने यूज़ किया है c इक्वल टू a इंटू बी, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका c, फिर से मैंने c प्रिंट आउट कराया यहाँ पर। इसके बाद क्या आ गया यहाँ पर, जो भी वैल्यूज़ है 55,000 यहाँ पर आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। फिर a स्लैश बी और a मॉडुलस बी, दोनों में आपको अंतर बता ही दिया था मैंने पहले ही कि अगर आपने स्लैश यूज़ किया है तो आपका क्वोशंट आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर है यहाँ पर देखिए क्या आया है, ठीक है, 2 और लास्ट में आ गया 0, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये आपका मॉडुलस, ये इतनी तरह के मैंने ऑपरेटर्स का यूज़ करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप इसको अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, अपने मोबाइल पर इसको ज़रूर करिएगा, ओके। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग डिटेल समझने जा रहे हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। यहाँ पर आप मैंने क्या लिखा है, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने वेरिएबल को जो यूज़ कर रहे हैं आप, उससे पहले अगर आपने माइनस माइनस या प्लस प्लस लगा दिया तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर वैल्यूज़ को, ठीक है, पहले से इंक्रीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वैल्यूज़ स्टोर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपने वेरिएबल यूज़ किया है और उस वेरिएबल के बाद में प्लस प्लस या माइनस माइनस का यूज़ किया है तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपको पहले स्टोर होगा और बाद में ऐड या डिक्रीज हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है इस प्रीफिक्स ऑपरेटर और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर का, कि आपका जो वैल्यू है एक से ही डिक्रीज होगी और एक से ही इंक्रीज होगी। ये नहीं कि मतलब आपका 2 से डिक्रीज हो जाए या आपका 3 से डिक्रीज हो या इंक्रीज हो जाए, ऐसा नहीं, 1 से ही डिक्रीज होगा, 1 से ही आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है आपके लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट के 2 प्रोग्राम, पोस्ट इंक्रीमेंट के 2 प्रोग्राम, ऐसे ही प्री डिक्रीमेंट के भी 2 प्रोग्राम आपको समझाऊंगा और पोस्ट इंक्रीमेंट के 2 प्रोग्राम, ठीक है। तो एक हर चीज के हम 2 प्रोग्राम करेंगे ताकि ये डिटेल से अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए इस प्रोग्राम में मैंने देखिए क्या किया है, इंट इक्वल टू इंट लिखा है और a इक्वल टू 100 ले लिया और यहाँ पर 2 बार प्रिंट एलन फंक्शन का यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस प्लस a है, यहाँ पर प्लस प्लस a मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा, यानी कि जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वही आपके बाद वाले एक्सप्रेशंस में यूज होंगी। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि यहाँ पर जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वही चीज आपके आने वाले एक्सप्रेशंस में यूज होंगी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर प्लस प्लस a का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर 100 है, अब आपका न्यू जो वैल्यू होगा वो 101 हो गई, 101 अब आपकी मेमोरी में स्टोर हो चुकी है। अब आपने लिखा नेक्स्ट वाला प्रिंट एलन फंक्शन में लिखा है प्लस a, मतलब क्या हुआ कि अब आपका जो 101 है वही वैल्यू आपकी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मेरे इस वीडियो को बहुत एंजॉय कर रहे हैं आप। आपके YouTube कमेंट्स बहुत आ रहे हैं मेरे पास, ऐसे ही आप अपना प्यार बांटते रहें आप, ओके। और मैं इस प्यार के लिए मैं आपको थैंक यू भी कहना चाहूँगा आपको, ओके। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ।
चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको 4 वेरिएबल्स लिए हैं मैंने यहाँ पर। ये भी आपका प्री इंक्रीमेंट के लिए ही आपका प्रोग्राम है ये। इसमें कौन कौन से हैं? a इक्वल टू 100, b इक्वल टू 50, सम और c। ये 4 तरह के वेरिएबल्स हैं। इसमें से c इक्वल टू प्लस प्लस a है आपका, सम इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। और यहाँ पर 2 बार प्रिंटलन फंक्शन, दोनों बार, एक बार मैंने c प्रिंट कराया और दूसरी बार सम प्रिंट कराया। तब देखिए प्लस प्लस a यानी कि 100 वैल्यू है, 100 में 1 प्लस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 101 101 प्रिंट हो जाएगा। अब a की जो वैल्यू है जो आपने लिखा है a प्लस b, वो 101 यहाँ यूज होगी अब। और प्लस b यानी कि प्लस 50, टोटल हो गया 151। यही आपका रिजल्ट होगा जो दूसरे प्रिंट लाइन में आपका आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं हम। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में जो प्लस प्लस जो साइन है वो बाद में इस्तेमाल होगा। अब देखिए मैंने सेम प्रोग्राम है आपका, a इक्वल टू 100 ही लिया है मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वाले में जो पहला प्रिंटलन है प्लस a, फिर बाद में 2 बार प्लस। तो पहला वाला प्लस कॉन्केटेनेशन के लिए है, यानी कि एक्सप्रेशंस को जोड़ने के लिए है वैल्यूज से, ठीक है। इसी को बोलते हैं कॉन्केटेनेशन। और बाद में जो प्लस प्लस यूज हुआ है वो तो आपको पता ही है, इंक्रीमेंट करने के लिए है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जो ओरिजिनल वैल्यू है, ए की जो वैल्यू ओरिजिनली यूज की गई है वही चीज मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगी। और स्टोर होने के बाद में 1 उसमें ऐड कर देगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो ओरिजिनल वैल्यू है a प्लस प्लस यानी 100 है, 100 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन बाद में जो प्लस a आपने यूज किया है वहां पर आपका आंसर आ गया 101, क्योंकि इंक्रीमेंट बाद में हुआ। ओके, चलिए इसी के साथ अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। स्टूडेंट्स, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप अपने लाइक्स और सब्सक्राइब्स इसको आप बढ़ाते रहें आप। ओके, चलिए इसी के साथ अगले प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्री इंक्रीमेंट को हमने खत्म किया था। अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट इंक्रीमेंट में। इसमें भी देखिए 4 वेरिएबल्स हैं, इंट a इक्वल टू 100, b इक्वल टू 50, सम और c। यहाँ मैंने क्या किया है, a प्लस प्लस की जो वैल्यू है मैंने स्टोर करा दी है कहाँ पर, c में, और सम इक्वल टू a प्लस b, और दोनों को मैंने यहाँ पर बारी बारी प्रिंट कर लिया है, ठीक है। a प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, जो ओरिजिनल वैल्यू है वही यहाँ पर प्रिंट होगी, ठीक है, यानी कि 100 ही यहाँ प्रिंट होगा। और a प्लस b का मतलब क्या हुआ कि अब मेमोरी में वो जो 100 स्टोर हुआ था उसमें 1 ऐड हो जाएगा, अब हो गया 101, ठीक है। और उसमें प्लस 50 हो गया, और प्लस 50 यानी कि 151 सब में जाके स्टोर हो गया, और वही चीज़ आपका डिस्प्ले हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। ये भी आपका जो है प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड है। आपका प्री डिक्रीमेंट में देखिए आपका a इक्वल टू 100 है, और यहाँ मैंने जो प्रिंट कराया है प्लस तो कॉन्केटेनेशन के लिए, माइनस माइनस a का मतलब हुआ कि अब डिक्रीमेंट पहले होगा, स्टोर बाद में होगा, यानी कि अभी जो न्यू वैल्यू है वो आपका 99 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लस a का मतलब क्या हुआ, 99 जो ओरिजिनल वैल्यू है जो स्टोर हो चुकी है वही आपका प्रिंट होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि डिक्रीमेंट हो चुका है, और डिक्रीमेंट होने के बाद अब आपका यहाँ पर प्रिंट हो गया है, डिक्रीमेंटेड वैल्यू ही आपका प्रिंट हो गया है। So, students, I hope each and everything is very much clear to you, because I am trying to give the explanation of each and every line in a thorough way, right? चलिए, let's move to the next slide to have the details, more details about the same. So right now this is one more program related to your pre-increment. Sorry, my mistake. It's a decrement operator. Take it, pre-decrement operator. So we'll try to understand the pre-decrement operator. So we'll initialize this here, a equal to 100, b equal to 50, c comma d. 4 variables are there, right? C equal to minus minus a, and then I have used here d equal to a minus b, and I have printed the c and d in a separate println function, right? So minus minus a means first you are going to decrement the values. It means 100 is there, it become 99, and the 99 means decremented value is used in the expression, in the upcoming expression. Upcoming expression is a minus b. It means that 99 minus 50, it become now 49, right? This is the program related to your pre-decrement.
Let's come to the next program. In your next program, what is going on here? That's it. It's related to your post decrement operator, and in this we are going to use a minus minus as after the variable, right? Variable values I have taken the same, I equal to 100, right? So in this, what is happening here? First, the value is getting stored in the memory. Like a equal to 100 is there, the 100 is stored in the memory. And once the 100 is stored in the memory, what is happening here? What is happening here? Nothing new, just after storing, it's getting decremented by 1, right? So now after decremented, the new value is 99. तो पहले वाले प्रिंट एलन में 100 प्रिंट होगा क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू यूज हुई है, उसके बाद मेमोरी में ही डिक्रीमेंट हो चुका है, न्यू वैल्यू अब जो होगी वो हो जाएगी 99। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। ये आपका प्रोग्राम रिलेटेड है पोस्ट डिक्रीमेंट से। यहाँ मैंने कुछ सम कराने, यहाँ पर मैंने डिक्रीमेंट कराने की मैंने कोशिश की है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्शन कराने की कोशिश की है यहाँ पर। तो यहाँ मैंने क्या किया है, वही 4 वेरिएबल मैंने ले लिए, a इक्वल टू 100, b इक्वल टू 50 और c कॉमा d। तो यहाँ पे क्या हो गया, c इक्वल टू a माइनस माइनस है यहाँ पर। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर पहले अब क्या होगा, वैल्यू स्टोर हो जाएगी और ये ओरिजिनल वैल्यू यूज हो जाएगी, और मेमोरी में यूज होने के बाद तब वो आपका 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आपका यहाँ देखिए क्या हो रहा है आपका कि यहाँ पर a इक्वल टू 100 ही देखिए आपका प्रिंट हो रहा है यहाँ पर न्यू वैल्यू। लेकिन जब डिफरेंस आपने निकाला तब क्या हुआ, अब आपका वैल्यू चूंकि डिक्रीमेंट हो चुकी है तो यहाँ आएगा 99 और b इक्वल टू 50 ही है। टोटल वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 49। ये रहे आपके जो प्रोग्राम जो पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट से रिलेटेड थे, और उससे जस्ट पहले हमने समझने की कोशिश की है प्री इंक्रीमेंट, जिसके 2 प्रोग्राम्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ तक हमने ओवरऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस को ही समझने की कोशिश की है हमने। ओके, अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। So students, I hope you have enjoyed a lot in this video, and I just want to say a most important thing here, that in this video we will cover the operators and its kind topic in 2 parts. In first part, we'll try to cover out only 2 kinds of operator, and rest of the operators will cover it next part. Okay, so don't worry about this. We in 2 parts will cover this topic, operators and kind. Okay, and I have made this video in 2 parts because of only one reason. The reason is the video not become too long, right? So thank you for your appreciations. And if you like this video, please don't forget to subscribe and please press the bell icon so that you can get the notification of my latest videos. So students, one more time, thank you so much. Keep healthy, keep enjoying. Thank you.